ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਔਲਖ ਸ਼ਰਮਾ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੰਗਾਮਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੁਸ਼। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ। ਅਤੇ ਵਧਿਆ ਬਰਡ ਪਾਰਕ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੋਹੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਜੰਡੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 10 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁੱਲ 8 ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਏਜੰਡੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ 3 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰੇਟ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਰੇਟ ਘਟਣ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 20,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਰੇਟ ਹੈ 10-11 ਸਾਲ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। 24/7 ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਜੋ 24 ਆवर ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੀਕੇਜ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਈਪ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਗੇ। मैं ਹੁਣ भी यही कह रही कि 3 गुना रेट नहीं बदलणगे कि जिन्ना मतलब जनता ते ना बर्डन पवे, बहुत घट रेट बदलणगे। इनका कसूर मैं कम मानता हूँ, पार्टी का कसूर ज़्यादा मानता हूँ कि जो पार्टी हैं वो नेशनल लेवल की पार्टीज़ हैं। अगर जो नए काउंसलर आए हैं, नए पार्षद जो आए हैं, उनको बताना चाहिए कि सदन की गरिमा और सदन में कैसे काम किया जाता है। आज आपने नोटिस किया होगा कि एक एजेंडा आया था जिसमें डॉग इशू को लेके था। उसमें कमिश्नर को इंटरवीन करना पड़ा, कमिश्नर को बताना पड़ा कि दिस इज़ फॉर इंफॉर्मेशन। अब वो कहते हैं कि एक्ट की कंट्रावेंशन पे हम बात ही नहीं कर सकते हैं, और वो उस पर कहते हैं वोटिंग करना है। अब वो कमिश्नर को बताना पड़ा कि भैया इस पर तो वोटिंग हो ही नहीं सकती, दिस इज़ ए एक्ट। जब एक्ट पे आप वोटिंग कर रहे हो तो आप सोचिए कि उनकी नॉलेज कम है। मैं ये बात नहीं बोलना चाहता हूँ, उनको थोड़ा एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत है। जब गौशाला वाला मुद्दा जब मैंने रखा तो उसके बाद उनमें से जिन्होंने उसका विरोध किया उन्होंने ये नहीं बताया कि वो विरोध क्यों कर रहे हैं। उन्होंने बोला सिर्फ शो ऑफ हैंड्स करवाएं। आप बताएं, क्या ये प्रजातंत्र का ये एक खिलवाड़ नहीं है क्या? आज चंडीगढ़ वासी जिनको कहते हैं, ये खुद कहते हैं जी मवेशी घूमते रहते हैं, हमारी गौ माता बेचारी घूमती रहती है, नंदी बैल हमारे घूमते रहते हैं, उन बेचारों को क्या उनका हक नहीं मिलना चाहिए? जब उनसे पूछा गया तो उसका कोई जवाब नहीं था। उनका एक ही जवाब था, आप वोटिंग कराएं, आप वोटिंग कराएं, आप वोटिंग कराएं। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। कुछ लोग जो हैं वो प्रशासन के पिछलग्गू बनना चाहते हैं, किसी के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हैं, हम वो नहीं कर सकते।
हमारा काम है कि लोगों तक जो उनकी बेसिक नीड है पीने का पानी वो सस्ती दरों पे पहुंचाया जाए। इसलिए हमने आज एजेंडों का जो है वो विरोध किया। ये जो लोग हैं, ये हमारी कल भी एडवाइज़र के साथ मीटिंग हुई थी, ये 2, 4, 6 और 8 का जो है रेट की स्लैब है, ये लोग उस स्लैब को 4, 8, 12, 16, 24 उसके बाद 3, 6, 9, 12, 16 जो भी ये लेके आ रहे थे, हमने मना किया। आप सीधे ही 2 गुने 3 गुने पे जा रहे हो, उसके बाद आप 30% सीवरेज सेस लगा रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, लोगों को बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाएगा। ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਲੀਕ ਪਾਈਪ ਠੀਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। इन्होंने इलेक्शन के टाइम पे तो गंदी राजनीति खेली कि मार्च तक जो है वो होना चाहिए। तो इन्होंने 1 अप्रैल से जैसे इन्होंने 12 सीट निकाली तो इन्होंने अपनी राजनीति फिर शुरू कर दी कि 3 गुना रेट है जो पानी के बढ़ने चाहिए। आप खुद बताइए, अगर 3 गुना रेट बढ़ेंगे, इतना ही तो दूध का बिल आएगा, इतना ही पानी का बिल आएगा, तो जिसकी 17-18 हज़ार रुपये पे है तो वो क्या खाएगा, कहाँ से बच्चों की फीस देगा। बिजली के रेट इन्होंने बढ़ा दिए, तो कूड़े के रेट इन्होंने बढ़ा दिए, क्योंकि कूड़े के बिल्डिंग वाइज किचन वाइज इन्होंने लगा रखे हैं। तो जिसके 3 किचन है तो उसका तो कितना पड़ गया, 200-600 रुपये वो पड़ गया। अगर कोई 200 गज का है, बड़ी कोठी है तो उसके 1800-1900 पड़ गए। तो आप खुद बताइए कि उसका कोई, जब तक ये अपनी पानी के जो रेट है कम नहीं करते, हर बार हाउस में हम यही करते रहेंगे और कुछ भी पास नहीं होने देंगे। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1-2 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਤੇ VOTING ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਨੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है तो आम आदमी पार्टी का जो कल्चर है वो अराजकता का ही है। ये चंडीगढ़ की जनता ने देख लिया और आगे भी आप देखिए आगे आगे होता है क्या। हमने कहा था कि ये जो सब्ज बाग दिखाए हैं, ये जो जिस प्रकार से झूठे वादे करते हैं और जो इनका जिस प्रकार से इनका व्यवहार है, आज इन्होंने पानी के इशू पे ये कह रहे हैं कि 20,000 लीटर हम पानी फ्री देंगे दिल्ली पैटर्न। तो हमने कहा पूरा दिल्ली पैटर्न लागू कर लीजिए। फिर ये हिम्मत रखिए कि दिल्ली में जिस प्रकार से 10 किलोवाट के ऊपर जो है, किलो लीटर के ऊपर जो है वो रेट्स कोई 24 रुपये हैं, कोई 46 रुपये हैं, ये लागू कर दीजिए। चंडीगढ़ की जनता को पहले उसको स्लैब को 20,000 लीटर फ्री करके बाद में 56 रुपये आप वसूलेंगे। और जिस प्रकार से लोगों ने उनका जो है असली स्वरूप देख लिया। डेवलपमेंट के एजेंडे, एनिमल बर्थ कंट्रोल का जो एजेंडा था वो शहर में कुत्तों के कारण से बहुत नुकसान हो रहा है, उनकी स्टरलाइजेशन के प्रोग्राम को रोक लगेगी। और इस प्रकार से और डेवलपमेंट के कांग्रेस पार्टी के वार्ड में हल्लो माजरा में मेयर ने दौरा किया, वहाँ सीवरेज का बुरा हाल था, उसका एजेंडा आया, कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया। आज मैं समझता हूँ कि उस कांग्रेस के उस पार्षद को ध्यान में रखना चाहिए कि ये पार्टी बीजेपी का विरोध तो कर ही रही है, लेकिन वो आज उस अपनी राजनीति को उस हद तक ले गई है कि उस विरोध को कारण से वो अपने वार्डों का विकास ही रोक रही है। और मैं आम आदमी पार्टी कांग्रेस दोनों को चेताना चाहता हूँ कि इस तरह के व्यवहार के कारण से शहर की डेवलपमेंट पे रोक लगेगी और इस तरीके का व्यवहार रहेगा तो सारा शहर का विकास जो है उसकी गति थम जाएगी। ये जो आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस ने दोनों हैंड इन ग्लव होकर जिस प्रकार से आज सदन में जिस प्रकार का व्यवहार किया तो वो जनता के सामने आना चाहिए।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਰੂਲਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀਸੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ मोदी ਅਤੇ गृह मंत्री अमित शाह ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। हम तो 92 से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं इसके लिए कि सेंटर स्केल हमें चाहिए, सेंटर सर्विस रूल चाहिए। 23 सितंबर 1992 को हमने एक दिन की हड़ताल की थी पब्लिक हेल्थ में। टोटल वाटर सप्लाई 3 दिन बंद रही थी इसी इशू पर, और अब इन्होंने चाणचक कर दिया। हमें खुशी है इस बात की, चलो हमारी डिमांड जो मानी गई है, क्योंकि हमारा जहाँ समस्या ये थी, कुछ पंजाब के रूल लागू कर देते, कुछ चंडीगढ़ के। हमें तो फुटबॉल बनाया था। अब एक कम से कम एक तरफ तो हो गया ना, जो फैसला होगा एक फैसला होगा, एक सरकार के साथ लड़ाई होगी हमारी, और इसमें फ़ायदा भी है, कोई नुकसान नहीं है। तो वैसे भी पंजाब ने भी जो नई भर्ती है सारी सेंटर स्केलों पर ही कर रहे हैं, चंडीगढ़ में भी पहले सेंटर स्केलों से कर रहे हैं, इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਦੇ ਛੱਡੇ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਦਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੇ ਪੈਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਨੋਮਲੀ ਨਾ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪੇ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ रूल लागू होने ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ खुशी ਦੀ लहर है। ये जो फैसला परसों मोदी जी के निर्देशानुसार अमित शाह जी ने जिसकी घोषणा की है, ये चंडीगढ़ के कर्मचारी वर्ग के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। बड़े लंबे से जो यूटी के एम्प्लॉइज़ हैं उनकी ये मांग चली आ रही थी। कभी उन पे पंजाब का लागू हो जाता था, कभी सेंटर का अडॉप्ट हो जाता था, लेकिन पिछले दिनों से पहले तो पंजाब का जो है वो काफ़ी वेतन की दृष्टि से काफ़ी लाभ रहता था, लेकिन पिछले कई सालों से जो सेंट्रल पे स्केल है और जो बाकी बेनिफिट्स हैं वो सेंट्रल सर्विसेज रूल के सबसे बेहतर थे। तो हमारे सारी यूनियंस लगातार भारतीय जनता पार्टी से मिलकर ये मांग कर रही थी कि सेंट्रल सर्विसेज रूल को लागू किया जाए, और उनकी मांग को जायज़ मानते हुए उस उचित मांग को जो है वो लागू कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि शायद आजकल में वो नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। लोगों की सर्विस में इजाफा होगा, किसी को 2 साल, किसी को 7 साल का बेनिफिट मिलेगा, मैटरनिटी लीव दुगनी हो जाएगी, ग्रेचुटी में और कई तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा ही हर्षोल्लास जो है वो हमारी एम्प्लॉइज़ यूनियन में है। बहुत सारे एम्प्लॉइज़ यूनियन मेरे पास लगातार उनके फ़ोन आ रहे हैं। आज भी लगभग 20-25 जो कर्मचारियों की अलग अलग यूनियंस हैं वो भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद करने के लिए आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ।
ज़्यादातर बीमारियां हमारे खान पान को लेकर होती हैं और खान पान से ही हम उन गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। अगर हम बात करें डायबिटीज़ की, हार्ट डिजीज़ की, अस्थमा जैसी अनेकों बीमारी हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ये बढ़ती जा रही हैं। हम चंडीगढ़ में ही बात करें तो 10 में से 6 लोगों को डायबिटीज़ होने का दावा किया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि अब ये रोग और बढ़ते जा रहे हैं। इनका एक ही कारण है, हमारा ये खान पान और हमारी लाइफस्टाइल को लेकर। हमारे साथ निवेदिता ट्रस्ट के लोग हैं और डॉक्टर वरिंदर गर्ग हैं। इन्होंने एक स्टार्ट लिया है कि ये ट्रस्ट की ओर से आहार क्रांति लेकर आएंगे, लोगों के बीच जागरूक करेंगे। उनसे पूछ लेते हैं, डॉक्टर वरिंदर गर्ग, अगर हम बात करें इस ट्रस्ट की ओर से किस तरह से काम किया जाएगा और किस तरह से आप अवेयर करेंगे? निवेदिता ट्रस्ट की तरफ से जो हमारे पारंपरिक पोषक आहार हैं, जिनको हम मोटे अनाज कहते हैं, उनके बारे में, और हमारी जो स्लो कुकिंग प्रोसेस है, धीमी आंच पे खाना पकाना, और तीसरा जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, लोहे के बर्तन हैं, ब्रास के बर्तन हैं और मिट्टी के बर्तन हैं, उनमें खाना पकाना, और जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, जैसे एल्युमिनियम और केमिकल कोटेड हमारे बर्तन हैं, और साथ में जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड हैं, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, तो उन सब को रिप्लेस करने के लिए ये कुल मिला के आहार क्रांति का जो पर्पज़ है, वो लोगों को ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड, ट्रेडिशनल फूड और ट्रेडिशनल वे के साथ जोड़ने का है। डॉक्टर वरिंदर, हम बात करें, आप OSD2 भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, PGI में भी आप देखते हैं जिस तरह से ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बढ़ती जा रही हैं। एक आंकड़ा आपने बताया कि 2030 में डायबिटीज़ का आंकड़ा इस तरह से बढ़ जाएगा कि हमारी ट्रिलियन इकोनॉमी चल जाएगी। किस तरह से लोगों को आप अवेयर करेंगे? तो इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ द बेस्ट वे। जैसे अभी देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जिसमें प्रमोटिव हेल्थ को प्रमोट करने का पिछले 5 वर्षों से काफ़ी अच्छा योजना चला है, जिसमें एक्टिव लाइफस्टाइल और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, सो दैट बहुत बड़ी जनता में, बहुत बड़े हिस्से में ये रोग पैदा ही नहीं हो और वो निरोगी रहें, और अगर किसी को ये रोग हो गए हैं तो वो रोग बहुत ज़्यादा खतरनाक हद तक बिगड़े नहीं, और वो प्रिलिमिनरी स्टेज पे ही खान पान की वजह से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से मेंटेन रहें। तो यही हमारा आहार क्रांति का भी उसी योजना में एक मोटिव है कि लोगों को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके महामारी से बचाया जाए। एक मैम, आप बहुत अच्छी बात अभी कह रहे थे कि दूध है जो वो भी पीने लायक नहीं रहा, कौन सा दूध पीना चाहिए, अनाज कैसे खाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, ये वर्कशॉप आप करेंगे, स्कूल कॉलेजों में भी जाएंगे, तो कैसे अवेयर करेंगे? जी, इस लोगों को अवेयर करने के लिए हम लोग वर्कशॉप्स के थ्रू तो उनको हम जागरूक करेंगे ही करेंगे, जिसमें कि हम खाना बनाने की विधियाँ बताएंगे कि खाना बनाना कैसे है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आती है, लोगों को लगता है हम ये खाना बना ही नहीं सकते, हमें पता ही नहीं मोटे अनाज को खाना कैसे है, बनाना कैसे है। तो हम उनकी दिक्कत को दूर करेंगे, उनके लिए हम एक सिंपल मैथड्स बताएंगे ताकि वो उसको अपने घर में जैसे नॉर्मल हम रोटी बनाते हैं वैसे बना सकें। रोटी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये क्योंकि इसमें एल्कलीन लेवल का फूड है, ज़्यादा है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। देखिए, हम जब व्हीट खाते हैं, राइस खाते हैं, हमारा पेट एकदम से भर जाता है, इसमें ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा है, मतलब ये एकदम से आपके बॉडी में जाते ही शर्करा को रिलीज़ करता है, जैसे एकदम से आपको लगता है कि हम लोग फिल्ड हो गए हैं, और बहुत जल्दी वो ग्लूकोज को रिलीज़ कर देता है। वही मोटा अनाज ग्लूकोज को रिलीज़ नहीं करता, जिसकी वजह से आप बहुत देर तक फिल्ड फील करते हैं, आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। तो मोटा होने का भी ज़्यादा चक्कर नहीं है इसमें, क्योंकि आप कम खाएंगे, प्लस आप जो खा रहे हैं वो काफ़ी पौष्टिक रहेगा, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहेगी और फुल ऑफ आयरन भी रहेगा। प्लस इसकी वजह से आप, और हमने कुछ केस स्टडीज़ भी करी हैं जिसमें हमने देखा है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ थी, जैसे सर ने बताया, उन लोगों ने 3 महीने या 6 महीने ही अपने खान पान को बदला और उनकी डायबिटीज़ का जो लेवल है वो काफ़ी हद तक रुक गया है, मतलब वो बड़ा नहीं है या उतना खतरनाक नहीं हुआ जितना हो सकता था। तो इस वजह से, और हम लोगों को अवेयर, जैसे मैंने अभी बताया कि दूध के बारे में भी जानकारी देंगे, हम मोटे अनाज के बारे में भी जानकारी देंगे। वर्कशॉप्स तो हम करेंगे, साथ में हम लोग फूड मेलाज भी लगाएंगे। लोगों को थोड़ा अट्रैक्टिव चीज़ें पसंद आती हैं, तो फूड मेलाज में हम उनको स्टॉल्स के थ्रू, रेसिपीज़ के थ्रू और डेमोस्ट्रेशंस के थ्रू बताएंगे, ताकि वो जल्दी सीख पाएँ और इसको जल्दी से जल्दी अपना पाएँ। एक मैम, आप बता रहे थे कि इसको लेके ऑर्गेनिक फूड को लेकर भी आप लोगों को अवेयर करेंगे कि अपनी छतों पर, बालकोनी पे किस तरह से लगाएंगे, वो किस तरह से अवेयर करेंगे? उसके लिए भी हमारी ये कोशिश होगी कि हम लोगों को अपना किचन गार्डन जैसे है, जिसमें वो ऑर्गेनिक फूड बिना खाद की जो केमिकल्स हैं उसके अपना
फूड उगा सकें, जो चीज़ जैसे सुपर फूड है एटलीस्ट वो घर में उगा सकें। तो जिनके पास अगर छत है तो छत के ऊपर इस चीज़ को कर सकते हैं। अगर ज़मीन है तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि लोगों को सामान भी अवेलेबल हो और उनको टेक्निक भी सिखा सकें इस चीज़ के बारे में। कुल मिला के हम बात करें तो लाइफ स्टाइल और खान पान की चीज़ों से ही काफ़ी कुछ ठीक किया जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है और इस पर लगाम लगाने के लिए इन दो चीज़ों पर ही कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। कैमरामैन रजत के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़। बर्ड पार्क देखਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਰਡ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਰਡ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੈਲਾਨੀ ਮਕਾਊ ਸਮੇਤ ਤੋਤਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਵੱਧ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੋਰੈਸਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਅਤੇ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਰਡ ਪਾਰਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਰਡ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਫੋਰੈਸਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਲੰਬੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਰਡ ਪਾਰਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਰਡ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਲਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। रुख मौसम का कर लेने तो जिवें हमेशा कहने कि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। हले मार्च महीना चल रहा है तो तापमान लगातार उपर उठ रहा है, जिस दे नाल गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो पसीने लोगों के छुट रहे हैं। वध तापमान 36.0 डिग्री सेल्सियस तो घट्टो घट्ट तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ताज़े इस बुलेटिन दे विच पास नहीं, फिर होगी मुलाकात। सत श्री अकाल।